Dear students, I welcome you all to Vision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to analyze composition of questions of SSC CGL that were asked in 2022 exams and how should we approach them. So we will see composition of questions and some short strategies. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है एंड हाउ टू एग्जीक्यूट दोज क्वेश्चंस. ठीक है, तो बिफोर यू लुक एट द क्वेश्चंस आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ पिक्चर, है ना, इन अ नटशेल कि हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू. So guys, as I said, first, I will give you brief explanations. In a nutshell, how many questions they ask you from different segments. So, majorly what happens, they ask you 5 questions from error detections or error locations. And 5 questions from cloze test. That is, a completion of a passage. ठीक है? इसका मतलब क्या? They ask you error detection, five questions. एक चीज याद रखो, until you know the composition of questions, so your preparation will not be perfect because you will have no idea कि मुझे कौन से टॉपिक पे कितना टाइम स्पेंड करना है. ठीक है, तो पहले आप देख लो कि what are their requirements. उनका रिक्वायरमेंट है out of 25, they ask you 5 questions from error detections. Error detection में क्या? They will ask you all the possible rules of grammar, all the rules under sun. So if you have to solve questions of error detections, you must be aware of all important concepts of grammar. इसके लिए हम coming videos में we'll come up with approach. चलो, other than cloze test they ask you, other than error detection they ask you cloze test. Cloze test का भी कितना? 5 questions. Done. So these two are the major elements of SSC CGL के prelim के questions का. 5 questions from error detections and 5 questions from cloze test. हो गए 10. बचे कितने? 15. तो 15 जो है ना, और ये पूरा डाइवर्सिफाइड तरीके से दे विल आस्क यू. 15 में दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस का 1 क्वेश्चन. दे आस्क यू नरेशन का 1 क्वेश्चन. दे आस्क यू सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन, है ना. दे आस्क यू सिनोनिम का 2 क्वेश्चन, एंटोनिम का 2 क्वेश्चन, idioms and phrases, 1 word substitutions, misspelled words, phrasal verbs. Getting it? तो ये दोनों, these two are the grand composition of SSC exams. It means out of 15, out of 25 questions, 5 questions from error detections, 5 questions from cloze test, and remaining 15 questions in diversified mode from all these: passive voice, narration, rearrangement, synonym and antonyms, idioms, 1 word, phrasal verb, misspelled words. हो गया खत्म. Getting it? It means 10, 12 exactly. अगर मैं इसको समराइज करूं तो in simple word I can say
In simple word, I can say कि they ask you 50% questions from grammar, 50% from grammar, and 50% questions are asked from vocabulary. Vocabulary. Bas. Am I clear? Listen once again. If you have to qualify SSC CGL with a flying color, so you have to make sure you have to balance both the elements. क्या सब? Grammar का element और vocabulary. Grammar का weightage 50%, vocabulary another 50%. So from now onwards, when you start preparing for SSC CGL, I will make sure we keep this balance intact. So I have very organized way of teaching. So I will make sure कि आप ग्रामर के साथ पैरेलली वॉकेब को भी इक्वली अच्छी तरह से करो. समझ में आ गया? सुनो, इट्स अ फर्स्ट क्लास इन दिस कैप्सूल. तो मैं क्या कर रहा हूं आज हम, लिसन वन थिंग. someone has said one thing, that first you must know what is perfect, then practice. If you practice something that is imperfect, you are bound to become perfect in imperfect approaches. इसका मतलब पहले आपको ये जानना है कि मुझे किस टॉपिक पे, किस एलिमेंट पे कितना वेटेज, कितना टाइम स्पेंड करना है. गेटिंग इट? एंड देन उसका करेक्ट स्ट्रेटेजी अप्रोच क्या है, एंड ओनली देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो पहले अभी हम क्या करेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस वेटेज, किस स्ट्रेंथ का आया है, इसका अप्रोच क्या होगा, एंड देन वी विल लर्न. ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. चल, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड, योर क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर. एंड आई बिलीव कि आप सबको ये चीज विजिबल होगा, है ना? आई बिलीव कि ये चीज सबको क्या होगा, विजिबल होगा. नंबर 76. व्हाट डज इट मीन बाय 76? 76 का मतलब द लास्ट का जो 25 क्वेश्चंस है एग्जाम में, वो इंग्लिश का क्वेश्चंस रहेगा. 75 के बाद नॉट टिल 100. तो नाउ आफ्टर लुकिंग दिस क्वेश्चन, कैन यू गेस कि ये किस टाइप ऑफ क्वेश्चन है? It says select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. A sentence is given, or in this sentence, अच्छा मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं. हाँ, चलो, गुड, नाइस. In this question, one part is underlined, ठीक, and they give you 4 options. 3 में they have given alternate statements कि can this statement be replaced by the remaining 3 options, and 4th option say no substitution is required. It means the given statement, the given underlined part is grammatically correct, no correction is required. ठीक है? अच्छा, तो कैन यू गेस कि ये किस टॉपिक के बेस्ड का क्वेश्चन हो गया? ये भी आपके ग्रामर के बेस्ड का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कुछ एरर है जो आपको डिटेक्ट करना है. चल, ठीक, डन. तो अगेन आई एम सेइंग यू कि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप एनालाइज करो. ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि ग्रामर का क्वेश्चन. मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इट सेज? इट सेज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. क्लियरली ये क्या हो गया? इडियम का क्वेश्चन है. कौन सा इडियम है? कैट्स पाव. एंड दे हैव 4 मीनिंग्स ऑफ कैट्स पाव. गेस करना, ये इडियम का क्वेश्चन हो गया. मूव ऑन. 4th नंबर क्वेश्चंस. Select the option that can be used as a one-word substitutions. यानी 4-footed एनिमल को आप सिंगल वर्ड में क्या कहेंगे?
How will you convey, what will you convey four-footed animal in a single word? You have four options: biped, mammal, quadruped, reptile. क्या हो गया? One word substitutions का questions. Move on to the next question. Question number 5. It says contain grammatical error. There is a sentence divided into 4 parts: part 1, part 2, part 3, part 4. Any of the part may contain error. Remember, it may contain error, may not be error. There may not be any error. Error नहीं भी हो सकता है. ठीक है? तो किस पार्ट में एरर पॉसिबल है? रिमेंबर, एरर डिटेक्शन में दे विल नॉट आस्क यू टू इंप्रूव और करेक्ट द एरर, दे जस्ट आस्क यू प्रेडिक्ट विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में कैरी एरर. ठीक है? तो अभी आप खाली देख लो, तो ये क्या हो गया? एरर डिटेक्शन यानी कि ग्रामर का क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ये क्या है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट. Rearrangement में, as I said, opening is given, closing is given. You have 4 statement. They may not be in an organized way. तो उसको rearrange करना है. And you have 4 options. कि which of the 4 is appropriate and make a coherent statement. Makes coherent passage. तो जैसे मैंने कहा था, rearrangement से क्वेश्चन आता है. ये उसका क्वेश्चन से. Move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 81. ये क्या कह रहा है? क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच. यू हैव अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है. 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर लेंगे. ये भी क्या हो गया? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गया. आगे सुनो, एक चीज देख लो. मैं फिर से कह रहा हूं, the correct way to defeat your enemy is to know your enemy. समझ में आ गया? तो हम सीधे क्लास 1 से नोट्स बनाना शुरू नहीं कर रहे. पहले हम एनालाइज करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. हाउ शुड आई प्रिपेयर, मेरा अप्रोच क्या होगा, मेरा डिफिकल्टी लेवल कितना का करेंगे. तो अगर आप एनालाइज कर रहे हो कि ये इजी टू मॉडरेट पैटर्न में है, वी शुड इन सच इन द सेम वे. ठीक है, चलो गुड. ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ देम कंटेन्स एरर. ये भी एरर लोकेशन का क्वेश्चन है. इट मींस पार्ट ऑफ ग्रामर. यू हैव अ स्टेटमेंट इन 4 पार्ट्स. You have options. देख लो कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. इनकरेक्टली स्पेल्ड. बोला था ना, एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड से आएगा. एंड दिस इज व्हाट. देख लो क्वेश्चन का, देख रहे हो कितने वर्ड का है? 3. कितने लेटर का? 3 to 5. इट मींस 5 to 6 लेटर का वर्ड मिसस्पेल्ड में. But be aware, sometimes they ask you 10-15 words, 10-15 letters का भी word misspelled में. हम देखेंगे, उसके लिए मैं आपको नोट्स भेजूंगा. आगे बढ़ते हैं. एंटोनिम. एंटोनिम का मतलब अपोजिट मीनिंग. You have a question, astound. You have 4 options. इसका एंटोनिम या अपोजिट मीनिंग क्या है, गेस करना है. वॉकैब का क्वेश्चन हो गया. आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 11. अगेन क्या है? ग्रामेटिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर. ग्रामर. यू हैव अ सेंटेंस इन 4 पार्ट्स. गेस करना है. अच्छा, एक मिनट रुको. अच्छा, यहां पे एक चीज करना है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एरर लोकेशंस में दे गिव यू 3 ऑप्शंस एंड 1 ऑप्शन सेज नो एरर. बट इन दिस क्वेश्चंस आई एम नॉट सीइंग द ऑप्शंस ऑफ नो एरर. है ना? मे बी, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है. यूजुअली
हर क्वेश्चंस में देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड नो एरर का ऑप्शन, देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम, select the appropriate synonym of the word. There is a word called sagacious. 4 ऑप्शन है, इसका सिमिलर मीनिंग देखना है, पार्ट ऑफ वोकेबुलरी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? Improve. Select the option that will improve the underlined parts of the given sentence. Sentence improvement, part of grammar है ना, पार्ट ऑफ ग्रामर। अंडरलाइन सेंटेंस है, टू गो आउट 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस में व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्म एंड 4th में नो इंप्रूवमेंट और नो करेक्शन का ऑप्शंस, पार्ट ऑफ ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, they have given you a statement in passive voice. You have to transform into active voice. Remember, after attending the complete course, you will be able to answer most of the questions in less than 50% of the time they have allotted to you. समझ में आया? फिर से सुनो। After attending the complete class, the complete course, you will be in position to solve the questions in less than 50% time they have allotted you. तो उसको हम देख लेंगे। तो passive voice में I will give you a kind of table. So if you just notice certain hints in the questions, you will be in a position to guess answer कि अगर ये कीवर्ड है, ये इनसे तो क्या पॉसिबल है। हम करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, नो एरर। इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एरर लोकेशंस। यहां पे देख रहे हो लास्ट का ऑप्शन है ना, नो एरर का है ना। तो यूजुअली सारे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन नो एरर का रहता है, बहुत अनप्रेसिडेंटली कभी कभी नहीं रहता है। ये भी क्या है, नो एरर यानी ग्रामर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 90, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अच्छा ठीक, इसका मतलब है कि अच्छा, तो एज अ सेड यू ट्रांसफॉर्मेशन में कैन बी आस्क्ड इन 2 ways. इट कुड बी एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, डजंट मैटर। लेकिन याद रखो पैसिव वॉइस से एरर लोकेशन या इंप्रूवमेंट का भी क्वेश्चन आता है। कैसे? अब देखो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, इसको चेंज करने बोल रहा है। अब ये ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी ये हो गया या if not option C, then option D. They will give you option D and they will say detect the error. यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है, वर यूज हुआ है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इररिलेवेंट है। क्यों? बिकॉज गिवन सेंटेंस जो क्या है, ये सिंपल पास्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में है। बट इन पैसिव वॉइस दे हैव यूज हैड बीन। हैड बीन इज अप्लाइड कहां पे? इन पास्ट परफेक्ट। तो दैट्स व्हाई ये क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड बी अवेयर कि पैसिव वॉइस में, नरेशन में, दे मे आस्क यू क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ a transformation also, where you have to change the form from active to passive and from passive to active, as well as
दे आस्क यू क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शंस और सेंटेंस करेक्शन, हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लास अटेंड करो, कमिटेड रहो, कम्युनिकेट करो, वी विल क्वालिफाई विद फ्लाइंग कलर इन कमिंग वीक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एंटोनिम। एंटोनिम यानी वोकैब्युलरी का क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, सिनोनिम, वोकैब्युलरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गिवन इडियम, वोकैब्युलरी का क्वेश्चंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड टेस्ट। क्या? क्लोज्ड टेस्ट। क्लोज्ड टेस्ट। Closed test is nothing, this is called paragraph completion. They will give you a paragraph with certain blanks in the passage. They will give you some options and you have to guess कि कौन सा options उस blank को complete करेगा. This is called closed test. It's nothing but extension of fill in the blanks. So in coming days, in coming videos, we will see strategies of all the segments. जितना element देख रहे हो, error detection, sentence improvement, idioms and phrases, one word, active passive voice, rearrangement, misspelled words, सबका organized way। चलो आगे बढ़ते। तो यहां पे क्या है, they have given you blank 1, blank 2, blank 3, blank 4 and blank 5 and they have given you options। ऑप्शन कैसा रहेगा देख लो कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96। तो बेसिकली जो 1 2 3 4 है ना, तो यहां पे आप 96 अज्यूम करो, 97, 98, 99 and 100 हो गया। You have 4 options to choose from। Again, question number 97 in blank 2। So like this it goes, question number 98, question number 99 and question number 100। हो गया आपका एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चंस का कंपोजिशन खत्म। इट मींस मैं क्लास खत्म की बात नहीं कर रहा हूं, कंपोजिशन खत्म। तो यू हैव सीन, यू हैव एनालाइज्ड कि जो अभी 2022 के अप्रैल में एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उसमें कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस एलिमेंट से कितना वेटेज आ रहा है, हमारा अप्रोच क्या होगा, वो सब चीज आप तो ये हो गया आपका क्लैरिटी। तो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड, इससे हम क्या समझें, इससे हम यही समझें कि भाई क्या एरर लोकेशन से यू सॉ 5 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट्स you noticed 5 questions, sentence improvement या corrections you noticed 2 questions, and then idioms 1 word, misspelled words ये सब से 2 each, rearrangement से 1 है ना, 6 8। so this is how they asked you questions। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है।
आई विल जस्ट सी कि चलो गुड। तो व्हाट आई डू, अभी आई विल जस्ट गिव यू वन हिंट, है ना, कि अब राइट नाउ वी विल सी द स्ट्रेटेजी एंड गाइडलाइंस हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन 50% ऑफ द allotted टाइम। मैं 30 सेकेंड्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज रिमेंबर इफ यू सॉल्व क्वेश्चंस इन गिवन टाइम, stipulated time, you will qualify. But if you are able to solve questions in less than given time, you have chances of qualifying with better rank. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि we prepare in such a way कि we are in position to solve questions in less than 50% of time. ठीक है, चलो। तो for time being क्या है, टाइम बिंग क्या है, हम वापस आते हैं कहां पे, कुछ देख लेते हैं जो कि कम टाइम में आप कर सको। अच्छा, ये पार्ट देख लेते, ठीक। बेस्ट है, चल। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके लिए कितना टाइम अलॉट होगा, दे विल अलॉट यू 30 seconds टाइम, यही ना, 30 seconds पर क्वेश्चन। तो रिमेंबर, if you try to read Ram Mohan was a lover of his country, blah blah blah, 30 सेकेंड में पॉसिबल नहीं है। What should you do? Whenever you are given a question of para jumble or sentence rearrangement, तो हम इस चीज को अच्छे से क्लास में और बताएंगे, है ना। क्या चीज, अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए कुछ बता रहा हूं आपको। Whenever you are given a questions of sentence rearrangement, तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, you will not read anything, you will just notice क्या, locate pronouns first, locate pronouns। आप प्रोनाउन लोकेट करो कि इस सेंटेंस में कहां कहां प्रोनाउन यूज हुआ है। इफ यू, तो यहां पे देखो क्यू में क्या है, ही एक प्रोनाउन है, ही क्या है, ही इज अ प्रोनाउन। यहां पे आर में भी ही है, सो ही ऑल्सो, ही है ना। और कुछ प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो स्टेप नंबर 1, लोकेट प्रोनाउंस फर्स्ट, वो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या चीज, इट सेज आइडेंटिफाई देयर नाउन्स, आइडेंटिफाई देयर नाउन्स, कि ये जो प्रोनाउन है इट रिलेट्स टू विच सब्जेक्ट, विच नाउन। अज्यूम करो कि प्रोनाउन दे है, तो दे मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। अगर इट है, इट इंडिकेट्स अ कॉन्सेप्ट, है ना। यहां पे है ही का मतलब क्या, कोई पर्सन मास्कुलिन, कोई मेल। तो if you notice there are 2 male, one is David and another is Ram Mohan. It means
he must be either Ram Mohan or David. When you read statement Q, it says he was talking with David. He was talking with David में ना, is it possible कि he अब David नहीं ना, David is already discussed. तो he क्या है? He talks about the Ram Mohan. यही ना? तो you identified the pronoun. He pronoun क्या है? It indicates Ram Mohan. Step number 3 देखो क्या करोगे? Step number 3 says pronouns must be placed immediately after their nouns. क्या बोला मैंने? Listen once again. Pronouns must be placed immediately after their nouns. यानी pronoun कहां पे place होगा? noun के ठीक बाद. noun के ठीक बाद. इसका मतलब S1 ये है, S1 राम मोहन. ये प्रनाउन कहां होगा? प्रनाउन will be placed immediately after S+1. It means ओपनिंग सेंटेंस जो होगा इट मस्ट बी Q. S1 के बाद देयर हैज टू बी Q. क्या? S1 must be followed by Q. It means ये सारे PQRS में ओपनिंग सेंटेंस हैज टू बी Q. और ओपनिंग सेंटेंस Q कहां पे है? देखो तो 4 ऑप्शन है A B C D. In which of the 4 options ओपनिंग सेंटेंस Q है? कहां पे? और वो है ऑप्शन C में. ऑप्शन C इज योर आंसर. बस खत्म. फिर से सुनो. When you are given rearrangement, don't read all the stories. Just identify, just locate कि where are pronouns visible. pronoun को locate करो. स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई देयर नाउन्स कि उसका नाउन कहां पे है, किस नाउन को इंडिकेट कर रहा है. यहां पे pronoun ही है और 2 जगह ही है. ही का मतलब क्या? ही का मतलब राम मोहन. बिकॉज ऑलरेडी डेविड डिस्कस हुआ है. इट कांट बी इट्स pronoun. स्टेप नंबर 3, क्या? pronoun प्लेस होगा कहां पे? नाउन के ठीक बाद. तो ये जो स्टेटमेंट है Q कहां प्लेस होगा? राम मोहन के ठीक बाद. इट मीन्स ओपनिंग सेंटेंस मस्ट बी Q ओनली. ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा? Q. कहां पे है? ऑप्शन सी में है. यही आपका आंसर है. खत्म. तो गाइस दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पैराजंबल. मैं बता दूं कि रीअरेंजमेंट और पैराजंबल में देयर आर सम मोर देन 12 स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस टू फाइंड मैजिकल पेयर. क्या बोला मैंने? मैजिकल पेयर्स. तो कमिंग वीडियोस में जैसा आपने पैराजंबल किया, likewise you will see the strategy of error locations, vocabulary, active passive voice, सब चीज का. ठीक है? So be in touch, keep watching, be committed, be positive, and we'll discuss many more things in coming days. So thank you very much. Have a great day, and I'll see you in next class with more energy. Have a great day.